Hello viewers, this video is regarding Ielts task 2 which will be helpful for academic students as well as GT. So not wasting the time, let's start. The topic over here is some cities create extra housing. ये कह रहे हैं यहाँ पे हमें जो क्वेश्चन है, द क्वेश्चन इज कुछ सिटीज़ जो हैं वो एक्स्ट्रा हाउसिंग क्रिएट करते हैं बाय बिल्डिंग tall buildings. Tall buildings means apartments, flats, and so on. Other cities do this by building on wide areas of land. जो बाकी के cities हैं वो क्या करते हैं, वो wide areas पे बनाते हैं land को, buildings को. ठीक है. Main question over here is which do you think is the best solution? आपको क्या लगता है कि best solution दोनों में से कौन सा है? ठीक है. Over here, first of all, I will explain you in short that how we can write this essay to get 8 band. So guys, introduction. The main question over here is how to write intro. बहुत सारे students यहाँ पे बहुत ज़्यादा time waste कर देते हैं, लेकिन you should not do that. You should avoid wasting time. Generally we have to just paraphrase this, and I will tell you that how we can paraphrase. First 2 or 3 sentence we have to paraphrase, and last we have to give thesis statement. Thesis statement is a statement which describes our position. This is really essential because without this bands can get deducted. So now I will briefly explain you that how we can write introduction. So now viewers, here we have paraphrased the full introduction. We have started with it is seen that ये देखा गया. यहाँ पे इन्होंने लिखा some cities create extra housing. यहाँ पे हमने लिख दिया it is seen that many. यहाँ पे उन्होंने लिखा था some cities, यहाँ पे हमने लिख दिया many cities. It is seen that many cities are building. वहाँ पे उन्होंने लिखा है building, so same here, that doesn't matter at all. ठीक है. यहाँ पे आप create भी लिख सकते हैं. It is seen that many cities are building apartments. यहाँ पे उन्होंने लिखा tall buildings, उसकी जगह पे हमने ये वर्ड को rephrase किया है, and we have used the word apartments and gated societies for the increasing population. ठीक है, ये हमने ऐड किया for increasing population. While यहाँ पे तक हमने जब कर लिया उसको पूरा पैराफ्रेज, इसके बाद हमने नेक्स्ट को पैराफ्रेज करने के लिए यहाँ से हमने वर्ड यूज़ किया है, लिंकर यूज़ किया है, दैट इज़ वाइल अदर्स आर बिल्डिंग रेजिडेंशियल हाउसेस. जो बाकी के लोग हैं वो रेजिडेंशियल हाउसेस, ये जो लार्ज एरियाज पे हाउसिंग होते हैं उसको कहते हैं रेजिडेंशियल हाउसेस ऑन वाइडर स्पेसेस. ये हो गया पैराफ्रेजिंग यहाँ तक. नाउ नेक्स्ट इज आवर थीसिस स्टेटमेंट. In my opinion, all cities should build tall buildings. मेरा ओपिनियन ये है कि सारे cities को tall buildings बनानी चाहिए to tackle the accommodation problem of overgrowing population. ठीक है जी. अब इससे आगे है main thing that where students make mistake. यहाँ पे क्या होता है कि body paragraph 1, ठीक है जी, बॉडी पैराग्राफ 1 में जनरली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो एक पार्ट ये लिख देंगे कि सम सिटीज़ कि यहाँ पे हमें अपार्टमेंट्स बनाने चाहिए, और बॉडी पैराग्राफ 2 में वो लिख देंगे कि रेजिडेंशियल हाउसेस बनाने चाहिए, और कंक्लूजन में वो अपना ओपिनियन दे देते हैं. ठीक है. दैट विद दैट method you cannot score 8 band guys. So let me explain you that how you can score 8 band easily without using very high vocabulary, but the major thing is that write clearly. So now let me explain you what we have to write in body paragraph 1. In body paragraph 1 we have to write our opinion. जो हम मानते हैं वो हम लिखेंगे यहाँ पे, like I believe that अपार्टमेंट्स बनने चाहिए यहाँ पे. ठीक है. तो बॉडी पैराग्राफ 1 में हम लिखेंगे अपार्टमेंट के बेनिफिट्स. ठीक है. अपार्टमेंट के बेनिफिट्स हम लिखेंगे बॉडी पैराग्राफ 1 में. तो बॉडी पैराग्राफ 2 में हम क्या लिखेंगे, बॉडी पैराग्राफ 2 में हम लिखेंगे ड्रॉबैक्स. ओके. ड्रॉबैक्स ऑफ रेजिडेंशियल हाउसेस. रेजिडेंशियल हाउसेस के ड्रॉबैक्स लिखेंगे.
सो इससे हमारा जो पोजीशन है वो स्ट्रांग हो जाती है कि हम बिलीव कर रहे हैं कि अपार्टमेंट्स इसीलिए फ़ायदेमंद है। उसका हमने ओपिनियन दे दिया, पॉइंट्स दे दिया, एक्सप्लेन करेंगे उसको अच्छे से, और हमने बता दिया कि रेजिडेंशियल हाउसेस अच्छे क्यों नहीं हैं। ठीक है, सो इससे हमारी जो पोजीशन है वो स्ट्रांग होगी एंड क्या होगा, क्लैरिटी इंक्रीज होगी तो हमें ज़्यादा पॉइंट मिलेंगे। ठीक है, सो नाउ लेट मी एक्सप्लेन यू दैट हाउ वी कैन राइट बॉडी पैराग्राफ 1 एंड बॉडी पैराग्राफ 2, एंड गाइस डू नॉट फॉरगेट टू कमेंट and give your feedback. Okay, so guys, here is body paragraph 1. We have started with topic statement. Topic statement क्या है? There are numerous advantages of building apartments. ये क्या होता है, इस लाइन से क्या होता है, इस लाइन से रीडर को समझ आता है कि इस पैराग्राफ में राइटर ने लिखा क्या है, उसको एक हिंट मिल जाता है। विद दैट क्लैरिटी होती है कि किस चीज़ के बारे में बात हो रही है। ठीक है, फर्स्टली ये हमने लिंकर यूज़ किया। फर्स्टली देयर वुड बी हाई सिक्योरिटी इन गेटेड रेजिडेंशियल अपार्टमेंट्स। ये हो गया हमारा फर्स्ट मेन पॉइंट कि जो गेटेड सोसाइटीज़ हैं वहाँ पे सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। इसका फिर हमने एज अ रिज़ल्ट, इसका हमने रिज़ल्ट लिखा, ये है सेकेंड लिंकर। एज अ रिज़ल्ट लो रिस्क ऑफ क्राइम इन दीज एरियाज। एज अ रिज़ल्ट यहाँ पे जो क्राइम का रिस्क है वो कम होता है इस सोसाइटीज़ में। फर्स्टली लिखा था तो सेकंड लिंकर हमने यूज़ किया सेकेंडली। बहुत इजी बहुत सिंपल वे में हमने एक्सप्लेन किया यहाँ पे। इट कैन प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू द मेंबर्स। सेकेंडली क्या है कि ये जो गेटेड सोसाइटीज़ हैं ये एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रही हैं मेंबर्स को ऑफ देयर ओन सोसाइटी। फिर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिंकर वो नहीं यूज़ किया फॉर इंस्टेंस, टू एक्सप्लेन, टू इलस्ट्रेट। ठीक है, सच एज हमने यूज़ किया, सच एज, क्योंकि वो बहुत कॉमन है, टू इलस्ट्रेट, टू एग्जाम्पलीफाई, ये वो। ठीक है, तो सच एज इन द मेंटेनेंस डिपार्टमेंट्स ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ पे मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है इन द बिल्डिंग, लाइक इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए, सम लोकल शॉप्स और ऑफ ग्रॉसरी के लिए हमें जॉब मिल सकती है, एंड मैनी मोर। तो लास्टली हमने कौन सा लिंकर यूज़ किया, हमने यहाँ पे यूज़ किया फाइनली गेटेड फ्लैट्स। यहाँ पे हमने गेटेड सोसाइटीज़ यूज़ किया था। ठीक है, अपार्टमेंट्स यूज़ किया था, फ्लैट्स यूज़ किया था, हमने यहाँ पे वर्ड यूज़ किया गेटेड फ्लैट्स। गेटेड फ्लैट्स आर चीपर। जो गेटेड फ्लैट्स हैं वो चीप होते हैं, सस्ते होते हैं, किससे, देन रेजिडेंशियल हाउसेस। तो हमने उसको कंपेयर करके भी बता दिया, तो हमारा यहाँ पे क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया पॉइंट। हाउसेस दस कैन बी गुड ऑप्शन टू सेव मनी। ठीक है जी, बहुत इजीली एक्सप्लेन किया हमने अपनी बात को, कोई ज़्यादा हाई वोकैबुलरी भी नहीं यूज़ की, कोई क्रैम्ड वर्ड नहीं यूज़ किया, कोई क्रैम्ड फ्रेज नहीं यूज़ किया, बट बहुत ईजिली हमने अपनी बात को एक्सप्लेन कर दिया। So this is the only thing that you should do in your writing essay to get 8 band score. Okay, so now let me give you the explanation of body paragraph 2. So body paragraph 2 हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने स्टार्ट किया कि ये प्रॉब्लम हुई शुरू कहाँ से, ये है हमारा टॉपिक स्टेटमेंट। ठीक है, टॉपिक सेंटेंस, द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग, जो हाउसिंग की प्रॉब्लम है ये स्टार्ट कहाँ से हुई, स्टार्टेड बिकॉज ऑफ लिमिटेड लैंड। ये हम एक अपना पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं कि जो ये रेजिडेंशियल हाउसिंग की प्रॉब्लम है ये शुरू क्यों हुई, क्योंकि लिमिटेड लैंड है अर्थ के ऊपर, वी हैव ऑन प्लैनेट अर्थ, एंड एडिशनली द रैपिड राइज इन रेशो ऑफ पीपल। वी हैव ओनली, यहाँ पे हमने आगे यूज़ किया है कि हमारे पास सिर्फ 29% लैंड है। सो गाइस यहाँ पे स्टूडेंट्स को अभी लगेगा कि ये चीज़ें हमें अगर ना पता हो तो, सो गाइस ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ये लाइंस देख लें, कंक्लूजन, टू रिकैप्चुलेट, टू रीफ्रेज, ये वो, आप ये चीज़ें मत सीखो, आप ये सीखो कि आप बीच जो बॉडी पैराग्राफ्स में लिखना है वो चंक्स कैसे हमने लिखने हैं। तो यही नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी वजह से आपको 8 बैंड मिल सकते हैं, ना कि आप रटी रटाई लाइंस से 8 बैंड नहीं ले सकते।
ठीक है. सो दिस इज़ द थिंग दैट यू मस्ट लर्न. तो आप इसको सीखने के लिए आप मुझे ऑनलाइन भी ज्वाइन कर सकते हैं, एंड इवन यू कैन ज्वाइन माई ऑफलाइन क्लासेस, एंड आई प्रोवाइड माई ऑफलाइन क्लासेस इन बठिंडा. सो नाउ लेट्स कंटिन्यू विद आवर ऐसे. तो यहाँ पे हमने आगे क्या लिखा है, वी हैव, हमारे पास क्या है, वी हैव ओनली 29% लैंड अवेलेबल ऑन दिस प्लानट, आउट ऑफ विच, जिसमें से 20% क्या है, कैन बी यूज फॉर लिविंग. 20% ही लिविंग के लिए यूज़ है. अब ये ज़रूरी नहीं है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये सही हो, अगर ये गलत भी होगी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. ठीक है. इन सच अ स्मॉल अमाउंट ऑफ लैंड, इतनी छोटी जगह पे, इट इज़ इम्पॉसिबल टू फिट दिस डेंस पॉपुलेशन. यहाँ पे हमने डेंस वर्ड यूज़ किया. देखिए, डेंस पॉपुलेशन को फिट करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है. यहाँ पे हम फिर अपने पॉइंट्स को ही स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं. देयरफॉर क्या है, द ओनली एंड बेस्ट सोल्यूशन, हम कह रहे हैं कि ओनली एंड बेस्ट सोल्यूशन दिस कंसर्न इज टू मेक मोर फ्लोर्स. यहाँ पे हमने अपार्टमेंट्स, फ्लैट्स कुछ नहीं यूज़ किया, हमने यूज़ किया कि ज़्यादा फ्लोर्स बनाओ ऑफ द बिल्डिंग, सो दैट मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैन लिव. ये चंक देखिए, सो दैट मोर नंबर ऑफ पीपल, यहाँ डायरेक्टली स्टूडेंट्स लिख देते हैं मोर इंडिविजुअल्स या मोर पीपल कैन लिव. हमने ये लिखा है मोर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कैन लिव there in the same area of land. Clear? So now let me give you explanation of the conclusion, that how you should write, because it's really important. अगर आपने सारा सही लिखा है लेकिन आपने conclusion नहीं लिखा तो आप 6 band भी नहीं deserve करते. So now not miss the conclusion. So guys, यहाँ पे हमने conclusion में कोई भी fancy word नहीं use किया. यहाँ पे in conclusion normally लिखा है in conclusion. ठीक है. यहाँ पे हमने कोई रिकैपिचुलेट ये वो कुछ नहीं लिखा हमने. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. बेसिक चीज़ है कि आप बॉडी पैराग्राफ्स में या अपने इंट्रोडक्शन में कैसे लिख रहे हो. ये जो रटी रटाई लाइंस है उससे आप अच्छे बैंड्स नहीं ले सकते. सो हमने क्या लिखा है इन कंक्लूजन. सबसे पहले हमने रीफ्रेज किया डायरेक्टली क्वेश्चन को. द राइज इन रेशियो ऑफ पीपल एंड लिमिटेड लैंड हैज़ क्रिएटेड अ प्रॉब्लम फॉर लिविंग स्पेस. इस चीज़ से लिविंग की प्रॉब्लम हुई है. हाउएवर यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है. हाउएवर देयर इज एन ऑप्शन टू कंस्ट्रक्ट रेजिडेंशियल हाउसेस. वहाँ पे ऑप्शन है, रेजिडेंशियल हाउसेस की ऑप्शन है फॉर दिस ग्रोइंग पॉपुलेशन. बट क्या, इवेंचुअली, एट लास्ट, मतलब कि एंड में होगा क्या, वन डे ऑल लैंड विल बी कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस. एक दिन क्या होगा कि सारे का सारा लैंड कंज्यूम हो चुका होगा बाय ह्यूमंस. हेंस द पॉसिबल सोल्यूशन टू हाउसिंग इज टू बिल्ड टॉल बिल्डिंग्स टू एकोमोडेट पीपल. सो बहुत ही ईजीली हमने डिफाइन कर दिया अपनी बात को. सो आई होप दैट दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू. इफ येस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, share, and guys, do not forget to comment, because your feedback is really important. If you have not subscribed my channel, please do subscribe it, and do not forget to press the bell icon so that you can get the latest updates. Thank you.